Welcome to the Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center. In 2004, a national level institute AMGITA has been started in the field of engineering and technology as per guidelines of All India Council for Technical Education AICTE New Delhi. AMGITA is approved by AICTE New Delhi, Gujarat State and affiliated to Gujarat Technological University Ahmedabad, which is also known as GTU. Our goal is to be an institute of generative ideas so that we remain relevant to our society. The AMGITA has always been an organization on move with continuous effort on improving its processes and to maintain its relevance to the Indian science scenario, with adding new programs in its programmatic portfolio. We strongly believe in overall development of students, so for that we provide them a different platform like state level tech fest, project fair, different sports activity, which helps students to teach teamwork and problem solving skills to get physical health benefits, boost self esteem, and reduce pressure and stress for prove their skills in distinct area. Welcome to the lecture of electrical measurement and measuring instrument. Myself, Professor Gaurang C. Patel from Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center, Navsari. So, today we are going to discuss regarding these two topics. First, we will discuss the digital voltmeter, how digital voltmeter is work, what is the block diagram, and we will see each and every individual function of the block diagram. Then we will discuss the second question, that is the digital storage oscilloscope, how digital storage oscilloscope is useful in electrical engineering and how all the functions are going to be worked in digital storage oscilloscope, that we will see each and every block diagram individually how it will be worked. Okay, so let's begin with the theory of digital voltmeter and digital storage oscilloscope. Okay, so student, we are starting today, that is the working of digital voltmeter with schematic block diagram. Okay, so what we have seen in our lab, that we are seeing that analog voltmeter. Okay, so in analog voltmeter में क्या होता है कि एक पॉइंटर होता है और वो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होता है, और जो भी आप उसमें से वोल्टेज, आप उसमें से जो वोल्टेज फ्लो होगा उसके अकॉर्डिंग इट विल गिव यू द डिफ्लेक्शन and you will get the reading of that particular voltage that what you are applied. But what is the problem for that analog voltmeter? Sometimes when you read the voltmeter from the different sides, suppose from the right side if you read, it will shows you bit of a difference, and if same reading you will read with the left side, it will be give you some difference. So uh, main purpose of that you will not find it accurate result. Okay, so in place of analog voltmeter, in nowadays we are using the digital voltmeter. Okay, so in digital voltmeter, whatever the amount of voltage you will get exactly on the screen, so there is no any difference from real reading to the your real reading, and any error will not be occurred. Okay, so in today's session we will see a digital voltmeter. So basically a digital voltmeter is an instrument which converts analog voltage signals into the digital form. So whatever the voltage you are measured, basically it was in the analog form. Okay, so in digital voltmeter we must need to convert it into the digital form, क्योंकि हमें डिजिटल फॉर्म में प्रॉपर फिगर चाहिए कि भाई कितना वोल्टेज पास हो रहा है, that if it is 200 वोल्ट पास हो रहा है, 230 वोल्ट, 400 वोल्ट, जो भी वोल्टेज है आपका आपके इंस्ट्रूमेंट में से जा रहा है वो आपको इन फॉर्म ऑफ डिजिट चाहिए. तो what you have to do, those analog signals you have to convert into the digital signal. Okay, now for the digital voltmeter, over here what are the first of all we will see this is the block diagram of the digital voltmeter. Okay, so first of all analog input is given over here. Okay, जो भी आपका मेजर हो रहा है वोल्टेज वो यहाँ पे एनालॉग इनपुट, यहाँ पे एडीसी जो पार्ट लिखा हुआ है दैट इज पार्ट दैट इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. ओके, वहाँ पे आप देंगे. ओके, और एक रेफरेंस सिग्नल यहाँ से प्रोवाइड किया गया है दैट इज ऑल्सो given to the ADC. Now analog to digital converter, whatever the signal it will be produced,
that is given to the signal processing unit. Okay, now signal processing unit, ये इनपुट, इसमें से जो इनपुट आ रहा है वो क्यों हमें सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट में देना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी आप वोल्टेज मेजर कर रहे हो वो जो वोल्टेज है उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी हो, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो, उन सबको फिल्टर आउट करके आपका जो सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट है वो क्या करेगा, प्रॉपर आपको जो डिजायर्ड वोल्टेज है वहां तक ले जाएगा और फिर प्रॉपर सिग्नल को प्रोसेस करे। प्रोसेस मीन्स उसमें से जो भी एरर्स है वो निकाल के फिर दूसरे उसके सेक्शन है, फर्दर सेक्शन, उसमें ट्रांसमिट करेगा, दैट इज द डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट। ओके, सो आफ्टर प्रोसेसिंग द सिग्नल, इट दिस signal processor unit will give this signal to the data transmission element. Okay, in data transmission element further it will read, either it is the reading is right or not, and it will sense whatever the reading that signal processing unit is given to that unit. And after that data transmission element, उसका नाम ही है data transmission element, so this element will transmit this processed signal to the display device. so यहाँ पे आपका डिजिटल डिस्प्ले लगा होगा डिजिटल वोल्टमीटर का, उस डिस्प्ले पे जो भी यहाँ पे से आपका एनालॉग इनपुट था वो पूरा कन्वर्जन एडीसी और सिग्नल प्रोसेसिंग थ्रू में उसका कन्वर्जन होके थ्रू द डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट वो सीधा आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा कि भाई इतना वोल्टेज आपके इंस्ट्रूमेंट में से पास हो रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिजिटल वोल्टमीटर ब्लॉक डायग्राम। ओके, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमने कि भाई एडवांटेजेस यहाँ पे डिस्कस किए हैं कि भाई व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल वोल्टमीटर्स। ओके, सो फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल वोल्टमीटर ओवर अदर वोल्टमीटर्स। तो सबसे पहले तो हायर एक्यूरेसी एंड रिजोल्यूशन। सो इट इज बट ऑब्वियस कि भाई ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा। कैसे हायर एक्यूरेसी होगा, जैसे हमने डिस्कस किया कि जो भी एनालॉग वोल्टमीटर होता है उसमें पहले तो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। एनालॉग वोल्टमीटर हमने देखा था कि कैसे बनाते हैं एनालॉग वोल्टमीटर। एनालॉग वोल्टमीटर में स्प्रिंग होती है, पिवोट होता है, मैग्नेट्स होते हैं, तो वो सब और वो मैकेनिकल पार्ट्स का मूवमेंट होने के बाद आपको एक सिग्नल मिलता है जो भी आप उस पर इनपुट दे। तो ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सो आफ्टर लॉन्ग यूजेज व्हाट हैपन विद दोज इंस्ट्रूमेंट्स, दिस इंस्ट्रूमेंट्स हैविंग एन वियर एंड टियर इफेक्ट। सो जितना भी आपको आप उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो थोड़ा उसका उसके अंदर इम्प्योरिटीज और लॉसेस के वजह से थोड़ा उसका परफॉर्मेंस में डिटेरियोरेशन रहेगा। ओके, सो आप उसकी वजह से आपको एक्यूरेसी ठीक तरह से नहीं मिली, जितनी चाहिए उतनी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। ओके, एंड व्हाट अबाउट द रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन दैट मीन्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि भाई आपका वॉल्ट मीटर को अगर आप सेंटर में से देखते हैं, आप लेफ्ट साइड से देखते हैं और आप राइट साइड से देखते हैं, तो डिफरेंट रीडिंग आपको मिलता है। तो उसकी वजह से आप प्रॉपर रिजोल्यूशन आपको वो जो वॉल्ट मीटर है एनालॉग वॉल्ट मीटर उसका नहीं मिलता है, तो उसका हमने कंपनसेट कर दिया यहाँ पे डिजिटल वॉल्ट मीटर, क्योंकि यहाँ पे तो सीधे आपको डिस्प्ले में डिजिट्स ही दिखाई देंगे। सो डेफिनेटली देयर इज अ हायर एक्यूरेसी एंड रिजोल्यूशन, वी कैन say that. Now next one, that is a greater speed. Absolutely it is a greater speed because all the microprocessor chip and digital things are performing that operation in speedy, or with compared to analog instruments it will give you a fast result। okay, जो हमने देखा है कि भाई जो भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में तो सब मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट सब पूरा वर्क टुगेदर करके आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपको रीडिंग देते हैं, बट in digital voltmeter that microprocessor will sense the signal very fast, it will process the signal very fast and give you the display very faster result with compared to analog voltmeter। so इसकी वजह से आपको उसमें स्पीड ज़्यादा मिलेगी। देर इज नो पैरालक्स, यहाँ पे कोई भी नो पैरालक्स दैट मीन्स क्या होगा कि भाई नो पैरालक्स दैट मीन्स एनालॉग वोल्टमीटर में क्या रहता है कि आपका एक वोल्ट मीटर सपोज यहाँ पे रखा हुआ है जिसमें दो मैग्नेट्स और वो सब इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, सेम उसी उसी इंस्ट्रूमेंट के साथ दूसरा कोई आप मीटर रखे जिसमें ज़्यादा हायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट का मैग्नेटिक फील्ड जो आपका वोल्ट मीटर है उस पर भी अफेक्ट करेगा। ओके, सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ पैरालक्स
लेकिन डिजिटल वॉल्ट मीटर में ऐसा कोई मैग्नेट्स और ये सब नहीं होते, माइक्रो प्रोसेसर चिप्स होती है जो आपका रीडिंग फास्ट सेंस करके रीड करके डिस्प्ले में देता है। तो कोई भी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वाला इंस्ट्रूमेंट भी अगर आप आपके डिजिटल वॉल्ट मीटर के साथ रख देते हैं तो उस पर उसके रीडिंग पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो दैट्स वाई इट इज रिटन डाउन ओवर हियर, दैट इज नो पैरालक्स। Then fourth one, that is the reduced human error. Okay, absolutely we have discussed that why it will reduce human error, because there is minimum involvement of human for getting reading। एनालॉग में तो क्या था कि भाई आपका जो वोल्ट मीटर का जो भी पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट होगा, उसके बाद आप रीड करेंगे तो आप कौन से एंगल से रीड करें वो भी डिपेंड करेगा, एज वी डिस्कस्ड। तो इसमें तो डिजिटल मीटर में इट विल गिव यू द डायरेक्ट रिजल्ट ऑन द डिस्प्ले, सो देर इज नो ह्यूमन एरर विल बी देयर। सो हम कह सकते हैं कि आपका जो ह्यूमन एरर है वो रिड्यूस यहाँ पे होगा। ओके, नाउ with the compatibility with other digital equipment for further processing and recording, इसमें आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं डेटा। एनालॉग में तो एक बार आपने देख लिया, वापस अगर आउटपुट निकल गया तो वो सिग्नल आपका चला जाएगा। ओके, आपको कहीं पे रिटर्न डाउन करके रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें फंक्शंस होते हैं रिकॉर्डिंग के भी, तो आप पर्टिकुलर इस डेट पे और इस टाइम पे कितना वोल्टेज हमने मेजर किया वो भी आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, नाउ further explanation is given over here. Every EDC requires a reference. The reference is generated internally, and reference generator circuitry depends on the type of EDC technique used. And the output of EDC is decoded and signal is processed in the decoding stage. Okay, so students, whatever we discuss, it is same theory that is given over here. Now, such decoding is necessary to derive the 7-segment display. The data from decoder is then transmitted to the display, and the data transmission element may be latches, counters, etc. As per the requirement, a digital display shows the necessary digital result of the measurement. So whatever the measurement you require, that your digital voltmeter, that it will shows on the display, and how your digital voltmeter is going to be work, then you can easily understood with this block diagram। okay, so I hope आपको इस थियरी में का ब्लॉक डायग्राम और कैसे डिजिटल वोल्टमीटर वर्क करता है एंड हाउ इट इज़ बेटर देन द एनालॉग वोल्टमीटर, कोई भी डिफरेंस हो तो आप उसका इजीली लिख सकेंगे एग्जामिनेशन में। ओके, बाय दिस explanation। okay, now next this question we will discuss about the digital storage oscilloscope with schematic block diagram। so student, जैसे डिजिटल वोल्टमीटर हमने पढ़ा वैसे ही हम ये DSO है। ओके, डीएस उसको शॉर्ट फॉर्म में DSO बोलते हैं, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। सो बेसिक फंक्शन डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का क्या है कि व्हाट एवर द सिग्नल that is, either it is AC signal, either you want to measure the frequency, magnitude of voltage, whatever the quantity electrical signal quantity you want to measure, you can measure, and also you can see on the in form of x-axis and y-axis plotted graph in the digital storage oscilloscope। so it is a very advantageous device and it is very useful in laboratory, that is digital scope oscilloscope। In place of DSO, what we are using, we are using the cathode ray oscilloscope, that is CRO। now it is a digital version of that CRO। okay, because अब क्या हो रहा है कि जो भी अपडेशन हो रहा है, जो भी एडवांसमेंट आ रहा है, उस वही एडवांसमेंट के साथ हमें भी टेक्नोलॉजी के साथ आगे चलना होता है। ओके, तो ही हम जो रियल वर्ल्ड है उसमें प्रॉपर सर्वाइव कर सकेंगे। ओके, सो इन प्रीवियसली हम CRO यूज करते हैं थे। now for the measurement of those signal, what we are going to use, we are going to use the digital storage oscilloscope। okay, so digital storage oscilloscope कैसे use होता है, then that I will show you। okay, so first of all we'll start with the explanation। a digital oscilloscope is an instrument which stores a digital copy of the waveform in the digital memory, which it analysis further using digital signal processing technique। तो सबसे पहले तो ये जो डिवाइस है वो स्टोर कर लेगा आपके सिग्नल को, फिर उस सिग्नल को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोसेसिंग टेक्निक, कि भाई कितना वोल्टेज है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो सब हम एक बार स्टोर कर ले, फिर आगे सर्किट में हम उसको यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। ओके, सेकेंड वन, द डिजिटल ऑसिलोस्कोप्स आर वाइडली यूज टुडे।
because of its advanced features of storage display and fast traces are and remarkable bandwidth. ओके, उसका यूज़ जो है आज बहुत ही बड़े पैमाने पे होता है, क्योंकि उसमें जो एडवांस टेक्निक है स्टोरेज सिग्नल को स्टोर करने की, उसको प्रोसेस करने की, ओके, उसकी वजह से दैट इज द मोस्ट यूजफुल डिवाइस DSO इज. नाउ ओवर हियर देयर इज अ block diagram is given over here of the digital voltmeter. So I will explain you this block diagram over here. So here you can see there is a digital voltmeter block diagram is given. There are different blocks are given. Okay, so first of all we will start with the input. You can see there are different parts. You can see this is input attenuator, vertical amplifier, sample and hold circuit, analog to digital converter part, data in and data out. This is the memory where the data can be stored. Okay, this is the trigger circuit. Okay, now over here that is the control logic. This is the digital and analog converter unit, vertical deflection amplifier. Similarly over here horizontal deflection amplifier, and over here it is a cathode ray tube. यहाँ पे cathode ray tube दी हुई है. Now how it will be work I will show you. Okay, by one by one block we will see how it will be work. Okay, now first of all हम क्या करेंगे कि भाई एक इनपुट सिग्नल होगा. ओके, कोई भी एक इनपुट सिग्नल जो भी आप मेजर करना चाहते हैं, वॉट एवर द इनपुट सिग्नल दैट यू विल गिव इट टू द इनपुट अटेन्यूएटर. ओके, आप उसको किस में दे रहे हैं, इनपुट अटेन्यूएटर में दे रहे हैं. इनपुट अटेन्यूएटर दैट मीन्स इट विल अटेन द सिग्नल एट द इनपुट साइड. अब जो भी सिग्नल आप देंगे उसको कोई रिसीव करने वाला भी तो चाहिए. ओके, तो वो काम कौन यहाँ पे करेगा, इनपुट अटेन्यूएटर करेगा. वो जो भी इनपुट सिग्नल है उसको कैच करेगा, उसको अपने पास रख लेगा. बाद में उस पर जो भी प्रोसेस करनी है वो प्रोसेस करके वो आगे क्या देगा, वो सिग्नल को वर्टिकल एम्पलीफायर में देगा. ओके, तो वर्टिकल एम्पलीफायर का यहाँ पे वर्क क्या है कि जो भी आपका सिग्नल है वो नॉर्मली आप जो सिग्नल सेंस करते हैं उसका अमाउंट थोड़ा कम होता है, उसको एम्पलीफाई करना पड़ता है. ओके, तो फर्दर उस पे एम्पलीफाई करके वो आगे जाने देता है. ओके, एम्पलीफाई यानी उसको बड़ा थोड़ा करना पड़ता है कि भाई एक प्रॉपर सिग्नल आपने लिया, सैंपल लिया, तो उसमें से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसको उस सिग्नल को आपको वाइडर करना पड़ेगा और उसके बाद आगे भेजना पड़ेगा. तो वो काम करेगा आपका वर्टिकल एम्पलीफायर. ओके, आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ दैट सिग्नल वर्टिकल एम्पलीफायर विल सेंड दिस सिग्नल एट द टू प्लेस. वन प्लेस इज दैट इज द ट्रिगर सर्किट. वो कैसे यहाँ पे वर्क करती है वी विल सी इट लेटर. एंड अनदर प्लेस दैट इज अ सैंपल एंड होल्ड पार्ट. ओके, सो आपका जो भी है इनपुट सिग्नल अटेन्यूएटर और वर्टिकल एम्पलीफायर थ्रू ये सैंपल एंड होल्ड का जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें आएगा. नाउ यहाँ पे इस सेक्शन में क्या होगा, दे विल टेक द सैंपल्स फ्रॉम दैट सिग्नल. ओके, दे विल टेक डिफरेंट सैंपल्स. फॉर एग्जांपल आपका एक सिग्नल है 0 to 20 के टाइम के लिए, तो उसमें से वो फॉर एग्जांपल 10 सैंपल्स निकाल लेगा. ओके, नंबर ऑफ सैंपल्स इट विल टेक. ओके, वंस इट विल टेक द नंबर ऑफ सैंपल्स देन दिस सैंपल्स इट विल बी होल्ड, क्योंकि जो भी सैंपल्स उसने दिया हुआ है वो वन बाय वन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूनिट में आपको भेजना पड़ेगा. अगर एक साथ आप सभी सैंपल्स भेज देंगे तो आपका जो इन्फॉर्मेशन इसमें रहता है जो सिग्नल में, वो इन्फॉर्मेशन लॉस होने का चांसेस रहता है. ओके, सो वो जो सैंपल्स, जो अलग अलग सैंपल्स जो उन्होंने बना लिए हैं, जो सैंपल सर्किट ने, वो सैंपल्स को वन बाय वन भेजने के लिए उसको होल्ड पे रखना पड़ेगा. तो ये सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या करता है, सिग्नल में से सैंपल भी निकालता है. फिर फॉर एग्जांपल एक सिग्नल में से उन्होंने इस यूनिट ने इफ it is take a 10 samples, so it will feed one by one signal to analog to digital converter. और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर क्या करेगा, ये जो सैम्पलिंग किए हुए जो भी सिग्नल्स है उसका वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा. ओके, सो डिजिटल फॉर्म में एक बार ये कन्वर्ट हो गया. नाउ वंस इट इज कन्वर्टेड इन डिजिटल फॉर्म, दिस ब्लॉक इज fed this signal to the next, that is the memory block over here. तो मेमोरी में ये सारा सिग्नल आ गए. तो एक बार मेमोरी में सिग्नल आ गया तो फिर क्या होगा, इट विल स्टोर ऑल दिस सिग्नल. ओके,
So once it will store, so this is data in, that means whatever the data we are feeding to the analog to digital converter, वो मेमोरी में आएगा। उसको, इस पार्ट को हम इनपुट डेटा के रूप में तरीके से जानेंगे। फिर एक बार मेमोरी में ये सारे डेटा स्टोर हो गए, ओके, नाउ आफ्टर स्टोरिंग दैट मेमोरी और दोज डेटा, जब भी आपको वो डेटा चाहिए तब उसमें से, मेमोरी में से आप फैच कर सकते हैं। सो ओवर हियर there is a given function that is data output, so output data will be send it from there. Now जो भी डेटा मेमोरी में से सेंड होके यहाँ पे जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, सीधा यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूनिट में जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमने एनालॉग टू डिजिटल का कन्वर्जन किया। वापस हमें तो भाई इसको डिस्प्ले में दिखाना है, जो भी सिग्नल है उसको इन फॉर्म ऑफ ग्राफ उसको एक डिस्प्ले में दिखाना है, तो वापस उस डिजिटल का हमको एनालॉग में कन्वर्जेशन करना पड़ेगा। तब आपको क्वेश्चन हो रहा है कि भाई एक बार एनालॉग टू डिजिटल किया, दूसरी बार डिजिटल टू एनालॉग किया, दैट व्हाई? Because whenever you taking the signal, it is always in analog form. Okay, आपका जो भी सिग्नल है वो तो आपको पहले एनालॉग फॉर्म में ही मिलेगा। ओके, क्योंकि आपका सिग्नल, आपका जो साइनोसॉइडल सप्लाई है, इट इज इन फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल। सो जो एनालॉग सिग्नल है वो तो पहले जब आप इनपुट लेते हैं तो एनालॉग ही मिलेगा, फिर आपको उसको डिजिटल में क्यों कन्वर्ट किया? तो कि भाई डिजिटल में इसलिए कन्वर्ट किया कि डिजिटल में कन्वर्ट होने के बाद ये जो प्रोसेस है वो हम वेरी फास्ट प्रोसेस कर सकते हैं, और उसकी जो इंफॉर्मेशन है एनालॉग में उसको हम फैच कर सकते हैं। और जो भी हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट यहाँ पे लगाया गया है, तो वो जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है वो कौन सी लैंग्वेज समझता है? इट विल ओनली अंडरस्टूड द लैंग्वेज ऑफ डिजिटल, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर यूनिट दैट मीन्स व्हाट, कि भाई एक तरह का चिप होती है, और वो चिप दैट मीन्स इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम। ओके, सो कंप्यूटर अपना कौन सा लैंग्वेज अंडरस्टूड करता है? दैट इज इट विल अंडरस्टूड ओनली अ 0 and 1, दैट इज अ डिजिटल लैंग्वेज, इट कैन बी अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, उसकी वजह से हमारा इनपुट जो है वो एनालॉग है, और हमें काम करवाना किससे है? हमारे कंप्यूटर से करवाना है। तो उसकी वजह से वी मस्ट हैव टू कन्वर्ट दोज एनालॉग सिग्नल इनटू द digital signal, and once you convert the digital signal, now question is why this digital signal is once again converted into the analog? Because कि भाई जो आपको फाइनली जो आउटपुट आपका कैथोड रे ट्यूब में चाहिए वो वापस आपको एनालॉग फॉर्म में चाहिए, कि आपका जो सिग्नल है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो सब आपको किस में चाहिए? एनालॉग फॉर्म में चाहिए। तो दैट्स व्हाई यू आर वंस अगेन कन्वर्टिंग दिस डिजिटल सिग्नल इनटू द एनालॉग सिग्नल। ओके, सो यहाँ पे वापस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन करके ये जो है वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर है। वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर दैट मीन्स व्हाट एवर the functions that you will get on the CRO on x axis. Okay, there are two axis, ग्राफ आपका जो भी प्लॉट होगा वो x एक्सिस और y एक्सिस के फॉर्म में प्लॉट होगा। ओके, आपकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेगी दैट इज x एक्सिस, वर्टिकल रहेगी वो y एक्सिस रहेगी। तो x एक्सिस और y एक्सिस में जब आपको प्लॉट करना है तो दोनों ही एक्सिस के डेटा को आपको रीड करना होगा और राइट करना होगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर, जो वर्टिकल में जो भी आपको डेटा एक्स एक्सिस पे मिलेगा वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर के थ्रू मिलेगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे दूसरा दिया गया है, दूसरा एक इनपुट है, वो है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन एम्पलीफायर। और हॉरिजॉन्टल दैट मीन्स वॉट एवर द लाइन हॉरिजॉन्टल दैट इज ऑन वाई एक्सिस, दैट इट विल गिव यू horizontal amplifier. This will give you through the horizontal deflection amplifier. Okay, so students, you can easily understood that how this function is going to be work. Okay, so आपको एक एक्स एक्सिस का यहाँ पे जो है दैट इज हॉरिजॉन्टल का मिल गया। ओके, और दूसरा एक जो आपको वर्टिकल दैट इज वाई एक्सिस का मिल गया, दोनों का सिग्नल यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब में। ओके, सो इतना पोर्शन हमारा कवर हो गया। नाउ दिस पोर्शन इज रिमेनिंग। नाउ हाउ दिस पोर्शन इज रिमेनिंग वर्किंग, दैट आई विल शो यू। तो भाई यहाँ पे वर्टिकल एम्पलीफायर में से
एक सिग्नल निकल के ट्रिगर सर्किट में जा रहा है और ट्रिगर सर्किट का आउटपुट जो है कंट्रोल लॉजिक के साथ कनेक्टेड किया हुआ है. ओके, सो स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट in computer system there is a control logic will be there. okay, कोई कोई तो ऐसी चीज है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं ये सब सिग्नल्स को, तो वो चीज क्या है, दैट इज द कंट्रोल लॉजिक. एक लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा कि कौन सा सिग्नल को हम किस टाइम पे फेड करेंगे, किस टाइम पे सेंस करेंगे, किस टाइम पे सेंड करेंगे, किस यूनिट में सेंड करेंगे. दैट्स ऑल दिस फंक्शन इज प्रोसेस्ड बाय द control logic. okay, so once you start the process within control logic, first of all you have to give the triggering pulse. okay, triggering pulse, that means it is a one kind of input, and after getting this triggered it will be actuated. okay, फिर आप ये वर्क करना स्टार्ट करेगा once you will get the triggering pulse. so once you will get the triggering pulse, one output is it will feeding to the sample and hold circuit, and one output is it will fed to the memory part. okay, so by sample and hold circuit में हमने कंट्रोल लॉजिक से एक इनपुट दिया हुआ है. वो इनपुट क्या करेगा कि भाई ये जो ट्रिगरिंग सर्किट जो इनपुट दे रही है उसके हिसाब से कंट्रोल लॉजिक अपना लॉजिक लगा के कितने सैंपल्स हमें लेने हैं वो डिसाइड करके इस ये यूनिट को कहेगा कि भाई आप इस सिग्नल में से 20 सैंपल्स ले लो, 30 सैंपल्स ले लो, 40 सैंपल्स ले लो. ओके, दैट विल डिसाइड बाय दिस कंट्रोल logic. okay, once it will get the samples in that particular section, then what it will be, that will be the another command कि भाई आपको सिग्नल नंबर 1 को पर्टिकुलर इतने टाइम तक होल्ड करके रखना है. once you will fed the signal number 1 to the analog to digital converter, तो सेकंड नंबर के सिग्नल को आप इतने टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल 0.2 सेकंड के बाद दूसरे सिग्नल को रिलीज करना है. तो वन बाय वन जितने भी सैंपल्स दिए हुए हैं वो किस टाइम पे हमें सेंड करने हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द कंट्रोल लॉजिक ओवर हियर. ओके, एंड द अनदर इनपुट इज गिवन टू द मेमोरी. तो मेमोरी में कौन से डेटा रीड और राइट करने हैं, कौन सा एड्रेस रीड और राइट करना है, वो भी यहाँ से कंट्रोल लॉजिक से डिसाइड होकर मेमोरी में जाता है. ओके, और वन आउटपुट जो दिया है कंट्रोल लॉजिक ने वो डिजिटल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस का जो यूनिट है उस पर दिया गया है. तो ये सेक्शन तो हमने अभी कंप्लीट किया ही है कि भाई डिजिटल टू एनालॉग का वापस कन्वर्जन करना है. क्यों करना है, क्योंकि हमें जो कैथोड रे ट्यूब में जो आउटपुट चाहिए वो एनालॉग फॉर्म में चाहिए. तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा DSO काम करेगा. दिस इज द ईच एंड every block explanation for digital to analog converter. okay, now further you can see what is the theory is given over here, that we will just quickly going through that. So as done in all the oscilloscope, the input signal is applied to the amplifier and attenuator section, and the oscilloscope uses same type of amplifier and attenuator circuitry as used in the conventional oscilloscopes. So that what we were discussed in that explanation during the block diagram explanation. Then what it will be says, just a moment, the attenuated signal is then applied to the vertical amplifier. जो भी attenuated signal है उसको हमने कहाँ पे vertical amplifier में apply किया हुआ है. ये that is the attenuated signal is given to the vertical amplifier. okay, now the vertical input after passing through the vertical amplifier is digitized by an analog to digital converter to create a data set that is stored in the memory. okay, now the data set is processed by the microprocessor and then sent to the display. okay, now data set is processed by the microprocessor that is nothing but the your control logic, and then it will send to the memory. so ये जो microprocessor है आपका control logic में, that it will be processed and that it will send to this memory. This data is going to be sent to the memory. okay, now the rate of sampling should be at least twice as fast as the highest frequency present in the input signal according to the sampling theorem. by sampling theorem में क्या है, एक उसका एक लो है कि जो भी आपका इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल आपका इनपुट सिग्नल का फ्रीक्वेंसी 50 है, तो आपका सैम्पलिंग रेट इंटू
2 होना चाहिए, दैट इज ट्वाइस इनटू द इनपुट सिग्नल, यानी कि तो आपका 50 इंटू 2 100 सैंपल्स आपको लेना होगा. ओके, सो the rate of sampling should be at least twice as fast as the highest frequency present in the input signal. Okay, so उससे twice आपको sampling लेना पड़ेगा, तो ही आपको जो proper आपका जो information है वो आपको मिल सकेगा. Okay, otherwise you will get the wrong information from the input signal. Okay, now this ensure to no loss information. Okay, वो जो मैंने आपको कहा, this ensure to no loss information. The sampling rate as high as 1 lakh samples per second is used, and this requires a very fast conversion rate of A to D converter. कि भाई जितना आपका सैम्पलिंग रेट हाई है उसके लिए आपको क्या ज़रूरत रहेगी कि बहुत ही फास्ट एक्ट करने वाला एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आपको चाहिए होगा. ओके, नाउ if a 12-bit converter is used, 0.25% resolution is obtained, while if 10-bit analog to digital converter is used, then resolution of 0.1 is obtained. Now similarly with a 10-bit A to D converter, the frequency response of 24 kilohertz is obtained, and the total digital memory storage capacity is 4096 for a single channel. यहाँ पे दो चैनल्स होंगे, हम उसको भी कवर करेंगे कि भाई कैसे दो चैनल्स कहाँ से इनपुट आउटपुट होता है हमारे लेक्चर सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर सेशन में कि भाई डीएसओ एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है. ओके, इस सेशन में हम अपने थियरी पार्ट कवर करेंगे. ओके, नाउ द सैम्पलिंग रेट एंड मेमोरी साइज आर सिलेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन एंड द वेवफॉर्म टू बी रिकॉर्डेड, and once the input signal is sampled, the analog to digital converter digitizes it and the signal is then captured in the memory. तो भाई एक बार आपने इनपुट सिग्नल का सैंपल ले लिया तो फिर क्या करेगा, वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को देगा और फिर वो अपने मेमोरी में उसको कैप्चर कर लेगा. ओके, नाउ वंस इट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी, मैनी मैनिपुलेशंस आर पॉसिबल एज मेमोरी कैन बी रीड आउट विदाउट बीइंग इरेज्ड. तो एक बार आपने उसको स्टोर कर लिया तो आप उसको कैसे भी तरीके से यूज करेंगे, क्योंकि एक बार वो स्टोर हो गया तो वो दैट इज स्टैंड्स फॉर देयर अप टिल वी आर नॉट डिलीटेड दैट. ओके, नाउ these are the advantages are given over here. What are the advantages of DSO that is given over here? तो काफ़ी सारे एडवांटेजेस है यहाँ पे स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ सिंगल शॉट कैप्चर. ओके, DSO कैन स्टोर अ सिंगल शॉट वेवफॉर्म इन इट्स मेमोरी. दैट मीन्स जो भी डिस्प्ले पे आएगा वो उस मेमोरी को आप कैप्चर कर सकते हैं, उसको एक क्लिक करके कैप्चर कर सकते हैं. ओके, नाउ प्री ट्रिगर, DSO कैन डिस्प्ले अ वेवफॉर्म अप टू मेमोरी लेंथ. जितने भी आपने स्टोर किए हुए हैं सिग्नल, उतने सिग्नल्स को आप वन बाय वन उसको डिस्प्ले कर सकते हैं. ओके, नाउ लो फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डिंग, डिस्प्ले रिमेन्स ऑन स्क्रीन इवन आफ्टर वेवफॉर्म डिसअपियर्स. ओके, डिस्प्ले जो भी है वो आपके स्क्रीन पे ही रहेगी, वेवफॉर्म आपका चला जाएगा उसके बाद में भी. ओके, सो analysis and data availability. So DSO can be used for analysis of captured data also. The data is available for external editor facing or can be printed. So ये भी बहुत ही यूजफुल फीचर्स है स्टूडेंट कि भाई आपका डेटा है वो उसको आपको एनालाइज करना है. काफ़ी जो रिसर्च होता है वो उसमें डिफरेंट सिग्नल्स को एनालाइज करना पड़ता है. ओके, कि भाई आपका फ्रीक्वेंसी इस टाइम पे कितना था, जब आपका 50 हर्ट का फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा वायलेट हुआ तो उस टाइम पे आपका वोल्टेज मैग्नीट्यूड कितना रहा है, आपका करंट कितना रहा है. तो उन सब को एनालाइज करने के लिए ये सारे ग्राफ्स और सिग्नल्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं. ओके, so that graphs and signals you can be utilized at any time when you want. Okay, now fifth one, that is delayed sweep measurement. Now the scope has two calibrated time bases and the alternate horizontal operating mode. Then convenient comparison of the same signal at two different sweep speed are possible. That means आपको दो signals को compare करना है, then also you can compare through this DSO. Okay, now what are the applications of DSO? That is, the number of applications of DSO are given over here. So some of the applications are given over that I will explain to you. That is, first of all, measurement of power. आप power को measure कर सकते हैं circuit का. Then detection of power failures and spikes. Okay, अगर कहीं पे power failure हो गया है, कहीं पे transient spikes आ रहे हैं, then you can also measure at where particular place and what is the severity of that particular failures that you can be detect through the DSO. Then third one, that is a measurement of mains interruption. आपका अगर मेन सप्लाई बंद है तो उसका इंटरप्शन क्यों है, कहाँ पे है, वो भी आप मेजर कर सकते हैं.
Then graphical monitoring of shape of waveforms. ओके, बट ऑब्वियस आप एक्स और वाई एक्सिस पे जो भी ग्राफ है वो प्लॉट करवा रहा है, तो उसको भी आप मॉनिटर करके देख सकते हैं कि भाई कितना आपका मैग्नीट्यूड है, कितना फ्रीक्वेंसी है, और क्या कौन से ड्यूरेशन का क्या टाइम रहेगा, वो भी आप ग्राफिकली मॉनिटर कर सकते हैं. देन एफ एफ टी एनालिसिस इज पॉसिबल. एफ एफ टी एनालिसिस, एफ एफ टी एफ एफ टी एनालिसिस आपको हार्मोनिक्स मेजर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि भाई आपके जो सिग्नल्स है, ओके, उस उसमें हार्मोनिक्स कितने हैं, तो वो आपको एफ एफ टी एनालिसिस थ्रू पता चलेंगे. ओके, सो देन फॉल्ट फाइंडिंग विथ हिस्ट्री फंक्शन. ओके, आप फॉल्ट फाइंडिंग विथ हिस्ट्री फंक्शन मीन्स कि भाई आप जितना भी जो भी कुछ आप यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं वो कहाँ पे आप मेजर करके मेमोरी में रख सकते हैं. ओके, तो उस मेमोरी से आप सिग्नल्स निकाल के देख सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल इस डेट पे कौन सी लाइन पे कितने वोल्टेज का मैग्नीट्यूड था, कितने वोल्टेज की स्पाइक्स थी, अगर ये फॉल्ट हुआ तो करंट इसमें से कितना फ्लो हो रहा था, that you can easily analyze with the stored waveform, और उससे आप इजीली चल पता लगा सकेंगे कि भाई एग्जैक्टली फॉल्ट कहाँ पे हुआ था. ओके, सो यू कैन से दैट फॉल्ट फाइंडिंग विद हिस्ट्री फंक्शन. देन एक्वायरिंग डिजिटल सिग्नल्स. ओके, सो आपको डिजिटल फॉर्म में भी सिग्नल अगर चाहिए तो भी आप उसको एक्वायर कर सकते हैं, आप उसमें से ले सकते हैं. ओके, so these are the applications of DSO, you can say that. So students, I hope you can easily write down both of the theory. There is the first that what we discussed, uh, that is digital voltmeter. Okay, here that is a digital voltmeter, and through this block diagram you can easily understand and describe if it here is asked in examination. And next one, there is the describe digital storage oscilloscope with schematic block diagram. So DSO को भी आप block diagram के साथ इजीली एक्सप्लेन कर सकेंगे आफ्टर दिस एक्सप्लेनेशन. ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस. ओके, सो आज के लेक्चर में हम इतना कवर करेंगे. वी विल कवर नेक्स्ट पोर्शन इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. So students, finally, as in every lecture, after completion of every lecture, I will try to give you a message that please remember turn off the light when it is not required. Okay, so please save the energy, save the electricity. Thank you very much.